इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है सर फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। सर फैंटेसी वाटर पार्क, एड्रेस बीरनकपो नियर गौशावली दरगाह, KGF, कर्नाटका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9483444290, 9480107826। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के हुसैन कोल्ड स्टोरेज के इहाते में गुलबर्गा कर्नाटका किसान सभा लीडर्स की जानिब से बीजेपी को हराओ दस्तूर बचाओ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कर्नाटका किसान सभा गुलबर्गा सिटी के जॉइंट सेक्रेटरी जावेद हुसैन ने इस प्रोग्राम के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में KPRS और CPIM के लीडर्स यू बसवराज कर्नाटका किसान सभा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, मीनाक्षी बाली डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट, शरण बसप्पा महाशट्टी कर्नाटका किसान सभा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, साइबन्ना गुड्डूबा कर्नाटका किसान सभा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, जावेद हुसैन कर्नाटका किसान सभा गुलबर्गा सिटी जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ TV उर्दू न्यूज़। ಸಾಲ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ಇವತ್ತು ಇತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡಲಾರೆ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೊಗರಿಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನರಸತ್ತ ನಾಮದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತೊಗರಿಯ ನಾಡಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ತೊಗರಿಯ ನಾಡಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ತೊಗರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಪಲ್ಸಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದು ಸತ್ತಂಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ SM ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಯ್ಯ ಪೈಸಾ ಬಂದಿ ಈ ತೊಗರಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ತೊಗರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಭೀಮಾ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ, ಭಾಜಪಾ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ, ಮನೆವಾದಿಗಳಿಗೆ, RSS ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಬಾಲಾಧ್ವಜ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಭೀಮಾ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ಪಲ್ಸ್ ಬೇಳೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಷಿನರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಮನುವಾದಿ ಬಿಜೆಪಿದವರು. ಅದು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಂತೂ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರದಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತುಂಬಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ JJM ಯೋಜನೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 78,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೊಕ್ಕ ತಂದು ಯಾರಣ ಚಂದ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರಿ. ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳೇ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೊಕ್ಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾರದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. आज गुलबर्गा में कर्नाटका किसान सभा कर्नाटका प्रांत रैत संघ का एक पॉलिटिकल कन्वेंशन रखा गया गुलबर्गा में, जिसका स्लोगन ही है
सेव फार्मर्स डिफीट बीजेपी। ये इसलिए है कि आज सारी दुनिया को पता है, हर किसान को पता है, हर आम इंसान को पता है, हर हिंदुस्तानी को पता है कि बीजेपी की नीतियाँ किस तरीके से किसान विरोधी रही हैं और किस तरीके से ग्रामीण विरोधी रही हैं, किस तरीके से कारोबारी विरोधी रही है, किस तरीके से लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स के खिलाफ रही है। ये सारी नीतियों के खिलाफ आज किसान गुलबर्गा के मुख्तलिफ तालुकों से जमा होकर एक नारे के साथ बीजेपी भगाओ देश बचाओ किसान बचाओ ये नारे के साथ आज यहाँ खड़ा। मैं चंद चीज़ें जो बीजेपी हुकूमत के दौरान किसानों के साथ पेश आई ये रखूँगा आप लोगों के सामने। सबसे पहले देखिए जो किसान आंदोलन चला दिल्ली का, जो 3 काले कानून बनाई थी बीजेपी गवर्नमेंट, उसका मकसद जो था किसानों के ज़मीन ख़त्म करके उनके पास से ज़मीन का मालिकाना हक़ ख़त्म करके कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले ज़मीन करने की जो नीति और जो कानून बनाया था वो कानून के ख़िलाफ़, और साथ में जो APMC मार्केट्स हैं, APMC मार्केट्स को ख़त्म करके कॉरपोरेट कंपनियों के अपने मार्केट खोलने का जो कानून बनाया था, उसी तरीके से अनाज जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होता है इंसानों को खाने के लिए, ये पहली ऐसी सरकार थी या सरकार बीजेपी जो जन विरोधी किसान विरोधी है, ये सरकार ने एक ऐसा भी कानून बनाया था जिसमें ये कहा गया था कि इंसानों के लिए अनाज ज़रूरी नहीं है। तो ये 3 काले कानून के ख़िलाफ़ जो किसान आंदोलन करते हुए 750 से 800 के बीच जो किसान शहीद हुए, वो किसानों की शहादत का बदला आज हर हिंदुस्तान का किसान इस बीजेपी हुकूमत से ले। अब देखिए गुलबर्गा की हम जब बात कर रहे हैं तो गुलबर्गा में भी पिछले 5 साल में जिस तरीके से किसानों ने खुदकुशी आत्महत्या करी है, ये बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 5 साल में जो गुलबर्गा के MP हैं, एक बार भी पार्लियामेंट में गुलबर्गा के किसानों के लिए सवाल या बात नहीं करी। ये बड़े शर्म की बात है, एक ऐसे शख्स को किसानों ने वोट दिया जो उनके हक के लिए ही खड़ा नहीं हुआ। चाहे वो मोदी सरकार ले लीजिए या प्रधानमंत्री मोदी ले लीजिए या आप हमारी MP ले लीजिए। अब हालत ये आके खड़ी है, बीजेपी हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान में लगभग 1.25 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अब आप इस हिसाब से देखिए, प्रतिदिन हर दिन भारत के 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये बीजेपी की नीतियों की वजह से। तो जब तक बीजेपी को हटाएंगे नहीं, किसान को हम बचा नहीं सकेंगे। अब आप उमूमन देखिए, एक गांव की आबादी होती कितनी है, 3000-4000 लोग रहते हैं, जबकि सालाना अगर 16 से 20,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो भारत की धरती से बीजेपी हुकूमत में हर साल 4 से 5 गांव ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। उसी तरीके से जो लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, जो भूमिहीन कृषि वर्कर्स हैं, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, जिनके पास उनकी खुद की खेती करनी नहीं होती है, तो किसी और के पास जाके नौकरी करते हैं, जो सालाना जाके उन्हीं के खेत में रहेंगे, उन्हीं के पास नौकरी करेंगे। ऐसे लोगों की तादाद बीजेपी हुकूमत में 16 करोड़ हो गई है। आप इसके ऊपर अंदाज़ा लगाइए, जब लैंडलेस एग्रीकल्चर की तादाद 16 करोड़ हो गई है हमारे हिंदुस्तान में, तो किसानों की हालत क्या होगी। जब हम देखेंगे लैंड के ऊपर जब बात हो रही है, तो आज तक बीजेपी सरकार ने किसी लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर को 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं दी। लेकिन आप उनके उद्योगपति मित्रों का हिसाब उठा के देखिए, बाबा रामदेव को 2000 एकड़ ज़मीन, अदानी साहब को 10,000 एकड़ ज़मीन, अंबानी साहब को 8,000 एकड़ ज़मीन। ये जो ज़मीन किसानों का हक, कृषि कूलीकार का हक है, ये लोगों की ज़मीन बीजेपी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को दे रही है और कृषि कूलीकार को, खेती मजदूर को, किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर कर रही है। अब इसी तरीके से जो कर्जा माफ़ी की बात है, किसानों का जो चला हुआ है कर्जा माफ़ी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का, आप एक बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, उसके ऊपर MRP होता है, मिनिमम रिटेल प्राइस। लेकिन ये जो बीजेपी हुकूमत 2018-19 में जो झूठे मोदी सरकार जो है, प्रधानमंत्री झूठे मोदी, इन्होंने कहा था कि किसानों के लिए MSP कानून बनाया जाएगा। आज 2024 का इलेक्शन आ गया, लेकिन MSP कानून नहीं बना। लेकिन MSP कानून के लड़ते हुए किसान तकरीबन 800 किसान शहीद हो गए। उसी तरीके से जो मोदी सरकार की नीतियाँ चली हैं, कॉरपोरेट कंपनियों को, उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना और किसानों को, कृषि कूलीकारों को मौत की तरफ ढकेलना। कर्जा माफ़ी की जब बात हम कर रहे हैं, तो किसानों का कुल कर्जा किसानों का हिंदुस्तान में 2.5 से 3 लाख करोड़ के बीच में आता है।
कितना 2.5 से 3 लाख करोड़ के बीच में खर्चा आता है किसानों का। बीजेपी जो खर्जा माफ़ी का नारा देकर हुकूमत में आई थी, 1 रुपया खर्जा माफ़ी किसानों का नहीं करी, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों का 14 लाख करोड़ खर्जा माफ़ कर दिया। अब ये बात क्या साबित कर रही है? ये बात साबित कर रही है बीजेपी सरकार जन विरोधी है, देश विरोधी है, किसान विरोधी है, और सिर्फ वो अपने उद्योगपति मित्रों के लिए अपनी हुकूमत में बैठी है। इसी के लिए गुलबर्गा के किसान सारे तालुका से, गुलबर्गा के जितने तालुका हैं वहाँ से आज किसान या गुलबर्गा में जमा है, सिर्फ एक ही नारे के साथ, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, किसान बचाओ, जय किसान, जय किसान, ये नारे के साथ यहाँ से किसान हमारे सारे शपथ लेंगे कि गुलबर्गा से बीजेपी को हराकर यहाँ से भगाया जाए। जय हिंद, जय किसान। जवाब में किसानों का नारा है, अब की बार मोदी तड़ी पार, 400 पार नहीं, अब की बार मोदी तड़ी पार। ये किसानों का, एग्रीकल्चर वर्कर्स का ये नारा है। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार मोदी तड़ी पार और अमित शाह फरार। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।